So he's getting, so let's calculate his taxable salary under both the scheme. The first is the default, where he doesn't get any tax benefits. I mean, all those reductions he'll not get. The second is, you can, if you want to enjoy all the tax benefits, then you have to pay a little higher tax. So the government first scheme is, which is default, okay, where which comes under section 115 BAC. So if you don't opt for that, then you have to pay tax as per the default one. Okay, then your income will be calculated on the basis of default system. But in case you say that I don't want the default, I want to claim deductions, then you have to opt at the beginning of the year. So I've just shared today in the morning, I've shared one article where all the employers, they'll be asking you, Kishore, when you are in a company, they will be asking your choice whether you want to go for a default or whether you go for old one. So they will normally ask you at the beginning of the year, because it is the employer's responsibility to make sure that all the employees are paying their taxes, and it's their job to deduct income tax on their salaries every month on a monthly basis, which is called tax deducted at source, TDS. Okay, so TDS provisions are, affected by the are affected to the employer, so they are supposed to deduct tax on your salary. So if they have to deduct tax on your salary, they must know, how much tax you're going to pay. So they must know which scheme you're going to opt for, default scheme or a non-default scheme. So that's why they seek a declaration from you at the beginning of the year, asking your, intention under which scheme you're going to opt for. Is that okay? So they're going to, ask you that what all you're going to save under ATC and everything. So they are going to have a declaration from you. Based on that, they'll calculate your tax liability. Okay, and the tax liability will be deducted in 12 monthly installment from your salary. That's called TDS. Is that okay? So employer को पता होना चाहिए कौन सी स्कीम आपने चुननी है, तो आपको अप्रैल में ही आपसे पूछ लेंगे वो. हाँ, ऐसा होता है कि देयर आर द गवर्नमेंट हैज, ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू फाइल योर ओन टैक्स रिटर्न. Okay, but the government says that if you are a salaried guy, then the employer is supposed to deduct tax on your salary. It's called tax deduction at source. Okay, so he's deducting tax on your this thing source. So if he has to deduct tax on source from your salary, he must know what scheme you are going to opt for, the default one or a non-default one. And he is going to take up declaration from you, and where all you're going to save. You're going to save some money in life insurance, or some other plans where you can suppose you have bought a house and you're going to repay the house repayment loan or something. So he's going to give you all the benefits which you're supposed to calculate when you file your income tax return. तो आपके लिए टैक्स कैलकुलेट करके निकाल लेगा आपका पूरे साल का कि आपका इतना टैक्स लगता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट scheme you are going to opt for. So it is the duty has been cast on the employer to deduct tax from your salary at source and deposit. But once the employer has deducted salary deducted tax from your source, then it is your job to file the return. Okay, because you may have some other income which you have not declared to the employer. So you are supposed to file a return saying this is my income, this is the tax which have all been deducted from the employer. The moment he deducts under your PAN number, it will get populated in your file. When you go to the filing income tax return, so you'll find that this much of all tax has already been deducted. It is lying to your credit in your account. तो आपके अकाउंट में वहां क्रेडिट जमा हो जाएगा कि आपका टैक्स 1 लाख रुपए साल में कट गया है, और आपका टैक्स बनता है सपोज 1,25,000. So 25,000 you have to deposit more and file your return. तो आपको रिफंड मिल जाएगा. हाँ, अगर सपोज आपका टीडीएस कट गया 1 लाख रुपए, आपका टैक्स लायबिलिटी बनी 75,000. सपोज आपने ज्यादा सेव कर लिया कुछ, you had no more money, so you have given a declaration, this is going to my saving, but you had more money, you spend more. So whatever the extra money which has been deducted on account of deduction from your salary, you can claim that as a refund. Okay, like in case of, again, when I'm working as a visiting faculty, so all the university colleges, they are deducting tax at source from my money which they pay to me. So at the end, I file the return, and if there is a shortfall, I pay some tax. If there is no shortfall, or if there is more, I get it. I normally claim all as a refund. Normally मुझे refund में कर लेता हूँ, because I get some benefits under the, because I have a car and everything, so I get depreciation, everything, so my expenses are much more than what my income is. So then I am able to reduce my tax. My income is there, but I claim a lot of expenses, my tax liability falls. Okay, fine. So then in this case, his salary was 4 lakhs. So basic salary में टैक्स लगेगा, जो डीएनएस अलाउंस मिल रहा है उस पर टैक्स लगेगा.
जो कमीशन मिल रही है उस पर टैक्स लगेगा. Then entertainment allowance 40,000 he's getting. He's a government employee. First, it will be added to his salary, and then a deduction will be given because he's a government employee. If he suppose he would have not been a government employee, then 40,000 entirely was taxable under that salaries. Then the medical expenses which the employer has given to you for meeting out some medical expenses, so that will be added to your salary. Then professional tax paid by the employer. Now professional tax was your baby, but the employer has paid 1,000 rupees, so that will be added to your salary. So it's a perk. So 7,16,000 is your income. Then on 7,60,000 you get 50,000 standard deduction, which is given to all the person who was working as a and getting salaries. Okay. So 50,000 is a flat deduction. Fine. Provided your salary should be above 50,000. But if your salary is below 50,000, then you may get only up to that amount of that amount. Okay. It can't exceed 50,000. So income from salary will be 6,66,000. Is that okay? Under the default scheme. But when we move on to the non-default scheme, that means you're going to claim all the exemptions. Now you're going to get some benefits here. Okay. Of course, your salary will remain same. Your adherence allowance is same, commission is same, so up to this there is no change. Entertainment also. So आपकी सैलरी पूरी 7,16,000 होगी, जो वहां पे भी थी यहाँ पे भी थी. But then standard deduction 50,000. Then you are entitled for this entertainment allowance deduction. आपको 40,000 entertainment मिला था, यहाँ डाल दिया था. आपको exemption कहाँ मिली? आपने 3 फिगर कैलकुलेट करी, उसमें 3 का जो लोएस्ट था वो आपको exempt हो जाएगा. 5,000 was the lowest. So maximum deduction allowed under entertainment is only 5,000. That's a statutory limit. So you have to calculate कितना मिला था, 1/5 सैलरी कितनी थी और स्टैट्यूटरी कितना था. इन तीनों में से लोएस्ट होगा, that will be exempt in your hands. So 5,000 is exempt. So this I'll reduce from my, this is the exemption I'm getting. Then 2,000 professional tax which I paid to the government, I'll be entitled for deduction under the non-default scheme. But in case of default, I will not get this deduction. So that means my salary will be how much? 6,59,000. So here my salary was coming as 6,60,000. So minor difference, but there is a difference. Okay. Now, if you see the question, there is the thing that he contributes 5,000 towards recognized provident fund. Now, in employees' contribution to recognized provident is not taxable. It is eligible as deduction under 80C. So the employees contribution तो उसका अपना ही contribution है, उसकी सैलरी में कट गया तो उसकी इनकम तो है ही नहीं. ओके. अब ये जो पैसा उसने डाला है उसको अंडर 80C में, अंडर नॉन डिफॉल्ट में उसको बेनिफिट मिल जाएगा. तो यहां पर ही कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर 2A, ये वाले में. यहां पर इसको जो 5,000 है वो 80C में हम डिडक्शन दे दें यहाँ इसको, यहां पर अगर सपोज यहां नहीं दी थी हमने, यहां दे दें 80C, तो हिज टैक्सेबल इनकम विल बी दिस मच. So that means he has to pay tax on this. Fine. So provident fund में जो उसने 80C में पैसा जमा कराया है उसको 1,50,000 तक उसको मिलता है बेनिफिट. तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन. हाँ, हमने लास्ट टाइम पूछा था. इट इज ओनली द जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट विल बी एलिजिबल फॉर 80C, नॉट द एम्प्लॉयर्स. हाँ, दोनों में ही है, बट एम्प्लॉयर तो प्रोविडेंट में होता ही है. जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है पहले उसको मिला, फिर उसने उसका सेव कर लिया, तो इसलिए. ओके. फाइन. मतलब वट एवर ही वाज गेटिंग इट वाज टैक्सेबल. जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो तो टैक्सेबल है ही नहीं. तो सिर्फ जो ये वाले केस में टैक्सेबल था उसका उसकी सैलरी टैक्स में आ गई ना. उसकी सैलरी तो ग्रॉस ही है ना, उसमें तो वो पैसा कटा हुआ है, वो चला गया था. जो उसने कंट्रीब्यूट कर दिया उसका फर्दर उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. यू गॉट मी? यू हैड अ कंफ्यूजन कि भैया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है. अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सैलरी का पार्ट तो ऊपर बन चुका था, क्योंकि जो सैलरी ऊपर दी है वो ग्रॉस है. इसमें हमने जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था वो हमने निकाला थोड़ा ना. ये बेसिकली जो सैलरी थी 4 लाख है, इसमें उसने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया प्रोविडेंट फंड में, हमने निकाला ही नहीं. क्योंकि ये पैसा 100% टैक्सेबल हो गया. ये था उसका 80C में बैठ, he can reduce his contributed. He has not got in his hand. So we have taxed it as a full 4 lakh rupees, which includes his contribution towards provident fund. He's paying tax. But since he's not getting that money,
एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा था, उसकी इनकम थी, वो हमने ली नहीं यहाँ पर क्योंकि वो अंडर सेक्शन 10 एग्जाम थे। और वो अगर जमा करा रहा है वो प्रोविडेंट में जाएगी तो उसका दोबारा एग्जाम बेनिफिट थोड़ा मिल जाएगा, पहले ही मिला उसको, इसकी इनकम ही नहीं मानेगी तो उसको हाँ हाँ देखो, जस्ट लिसन टू मी अगेन प्लीज। देखो दो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सो आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर, जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल हियर। सपोज योर सैलरी इज से 4 lakhs, सेम चीज, आपकी ये सैलरी है, ओके। और लेट्स से प्रोविडेंट फंड, दिस इज एम्प्लॉय एंड दिस इज एम्प्लॉयर, फाइन। और सपोज ये जो कंट्रीब्यूशन है 10% है, और ये भी कंट्रीब्यूशन 10% है, फाइन। तो अब उसका तनख्वाह तो 4 लाख मिली। अब ये 4 लाख रुपए फुल्ली टैक्सेबल है इन योर हैंड्स। इसमें जो आपको जो पैसे मिला था, आपकी जो पे चेक मिला था, वो तो ये मिला था आपको, ये माइनस ये, आपको जो चेक मिलेगा इतने का मिलेगा। जो 40,000 रुपए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कराया वो तो सीधा उसने जमा करा दिया प्रोविडेंट फंड में, वो तो आप पे का पार्ट ही नहीं है, वो तो चला गया आपका प्रोविडेंट फंड के रिटायर्ड बेनिफिट में। तो आप सपोज कि आपकी कोई और डिडक्शन नहीं है, आपकी 4 लाख सैलरी थी, उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाज 10%, सो आफ्टर दैट द मनी यू गॉट इन योर बैंक अकाउंट वाज 3,60,000। एज्यूमिंग यू डोंट हैव अदर इनकम, कोई और चीज नहीं, तो आपको 3,60,000 मिल जाएगा सीधा। तो अब हमने जब उसका टैक्स लगाया तो हमने इसकी इनकम 4 लाख दी, न कि 3,60,000। उसका हाथ में तो 3,60,000 मिला था, ओके, लेकिन उसकी टैक्सेबल इनकम हमने 4 लाख मान ली, फाइन। अब जो ये इसने 40,000 रुपये जो सेव करा था, वो हम यहां पर उसको, यहां पर ये फिगर रख देंगे, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फाइन। सो इसकी इनकम यहां कम हो गई क्योंकि इसके हाथ में तो आया नहीं ना, तो हम उसको डिडक्शन देंगे अंडर 80C में, ना कि उसकी सैलरी कम कर लेंगे। वो उसने कंट्रीब्यूट करके प्रोविडेंट में कर दिया, अप टू 1,50,000 यू कैन कंट्रीब्यूट, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स यू कैन क्लेम डिडक्शन। हाँ, ऑप्शनल वाले में नहीं, डिफॉल्ट में जो है उसमें तो आप 80C का बेनिफिट ले नहीं सकते ना। देखो डिफॉल्ट में गवर्नमेंट कहती है आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप फुल टैक्स पे करो, बट वी आर लोअर द टैक्स रेट, सो गवर्नमेंट वांट्स दैट एवरीबॉडी शुड मूव टू द डिफॉल्ट वन। But if you think that by claiming more deductions you can save your tax, so you have to make a choice. क्या हुआ? हाँ बताओ। हाँ, जहां से कराया था हमने ये वाला, हाँ। और ऊपर आ गए, रो नंबर बताओ। ये था ना, हाँ। इसमें ये दूसरी चीज है, ये बताता हूँ आपको क्या था। ये फिगर है कि अगर 7.5 लाख रुपया से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट रिलेट दिस विद हेयर, ओके। यहां हम आते हैं सपोज, हाँ, ये मैं यहां आ जाता हूं, आपको यहां मैं बताता हूं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। आई जस्ट गो टू दिस क्वेश्चन अगेन, जो आपको मैंने यहां बताया। सपोज आपकी सैलरी जो थी वो मान लो 50 लाख रुपए, लेट्स से दैट यू हैव अ वेरी बिग अमाउंट ना, इसमें भी नहीं बनता, 5 लाख है ना। आपकी सैलरी है सपोज 10 लाख रुपए, आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख, फाइन। सो अब ये तो आपकी तनख्वाह में से निकल रहा है, आपकी सैलरी में से कम करके आपको सिर्फ 9 लाख मिल रहा है। ये जो ये है 1 लाख रुपए, इसकी लिमिट जो है वो 7.5 लाख रुपए है। मतलब एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट ओनली अप टू 7 लाख। अगर बाकी तीनों भूल जाए, एनपीएस भी है उसमें, सुपर एनुएशन भी है, और कुछ भी नहीं है सपोज, ओके, तो ये लिमिट इतनी है, तो इसका मतलब ये आपकी ऐड हो जाएगा इनकम में। ये सॉरी, ये 7.5 लाख था ना। हाँ, तो ये तो लाख ही रुपया मिल रहा था, और भी आ सकता था। सपोज
आपके जो है मतलब ये फिगर लाख रुपए बनती, सपोज ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज 9 लाख, तो ये बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। हाँ, सपोज मैं आपको देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, आपको मैं कर लेता हूँ, सपोज एक जीरो ऐड कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये आ गया। अब सपोज ये आ गई, सपोज दिस वाज योर सैलरी, ओके, assuming, okay, and there was only provident fund. Of course you can add the superannuation other thing, but for simple reason I'm ignoring that कि सिर्फ यही है आपका। तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका? 10 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपको सैलरी मिल रही है 1 करोड़, उसका 10 लाख रुपए जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 1 लाख आपकी सैलरी में से कट रहा है, तो आपको पैसे 90 लाख मिल रहे हैं साल के। ओके, ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अदरवाइज। ओके, बट ये एग्जेम्पशन की ओवरऑल लिमिट जो है 7.5 लाख है। हाँ, ये तो हम फर्स्ट में जो हम जो शीट कर रहे थे वो माइनस नहीं है, वो ऐड हो रहा है। ये जो देखो, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, सपोज ये होता ही ना, कुछ भी नहीं होता, इसमें जीरो था हमारा। हाँ, ये सबको मिला के यहाँ फिगर आ जाती है। इफ द बाय द एम्प्लॉयर टू द एक्सटेंट अकाउंट ऐसे टू द एक्सटेंट एक्सीड्स 7.5 लाख। हाँ, ये तीनों के कंट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख से ऊपर हो जाता है, जितना ज्यादा होगा वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। हाँ, तो उसमें भी मैंने देखा कि वो 10 लाख बन रहा था, 7.5 की जगह 10 लाख आ रहा था, तो 2.5 लाख रुपए मैं उसकी इनकम में ऐड कर दूंगा। ये देखो, यहाँ देखते हैं हम, ये जो 2.5 लाख है वो इसकी इनकम में यहाँ ऊपर ऐड हो जाएगा कहीं। ठीक है, तो मैं एक लाइन और ऐड करके कहीं पर भी ये फिगर को ऐड कर दूंगा। ये फिगर मैं यहाँ निकालूंगा और इसको यहाँ से ऐड कर दूंगा। ओके, so this is maximum deduction allowed is only, तो ये मैंने लिख दिया मैक्सिमम 7.5 थी, बाकी यहाँ आ गई। अब आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो ये हो जाएगी इतनी। ओके, फाइन, गॉट इट ना। तो ये जो जितना भी 7.5 लाख से ऊपर का होगा वो आपकी इसमें हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोविजन। इज दैट ओके? अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनो, देखो, और अब मुझे आपको गाइड करना पड़ेगा। आई आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू, ओके, कि क्या होगा। जस्ट रीड इट। पढ़ा जा रहा है? हाँ, जूम कर दो। नहीं, फैसिलिटी, नॉट फैकल्टी। नहीं, हर चीज फैकल्टी नहीं होती। कॉलेज में तो होती है, बट यहाँ फैसिलिटी है। When you are working in a company, then things will be different. Okay, yeah. ठीक है, आगे। ठीक है,
So in this case, he wants to go for the, not for the default, but he wants to shift out of the default. He wants to claim all the exemptions. Okay, so we have to compute his tax liability as if he is not going for the default, he is going to claim all the deductions. Okay, so just let's see first. So बेसिक सैलरी दी हुई है. ओके, अब बीच में बेसिक सैलरी बढ़ गई तो हमें पूरी साल की निकालनी पड़ेगी. ठीक है. देन डीएनएस अलाउंस इज टैक्सेबल. बोनस इक्वल टू 1 सैलरी, दिस इज टैक्सेबल, वी ऑल नो दैट. हाँ, अब बताओ ये फोर्थ वाला जस्ट रीड इट. सुरक्षा कंट्रीब्यूशन. हाँ, तो अभी इसमें क्या होगा, व्हाट्स योर व्यू दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर. तो जो करा है कंट्रीब्यूशन 16% ऑफ बेसिक सैलरी. सो इसमें कुछ आपको लग रहा है कुछ टैक्सेबल होगा? हाँ, 12% से ऊपर जो है टैक्सेबल है. तो अप टू 12% इट इज नॉट टैक्सेबल, इट विल बी एग्जेम्प्ट. द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विच एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग अप टू 12% इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. But anything above 12% will become taxable in the hands of the employee. Is that okay? अच्छा, professional tax paid by 2,500, of which 2,000 was paid by the employer. So what happens to 2,000 paid by the employer? ये इसकी perquisite value है या नहीं है? हाँ, that will be added to the income. जो देखो, ये तो obligation तो employee की थी, but it has been paid by the employer, so this will become part of the income 2,000. But this 2,500, will you get the exemption? अंडर द डिफॉल्ट स्कीम में एग्जाम्पशन मिलती है और नॉन डिफॉल्ट में. हाँ, नॉन डिफॉल्ट में मिलेगी, डिफॉल्ट वाली में नहीं मिल, बट ही इज गोइंग फॉर नॉन डिफॉल्ट, सो ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग. जो ये 2,500 रुपए का बेनिफिट जो पे कर रहा है, ही कैन क्लेम एन एग्जाम्पशन बिकॉज ही हैज चूजन द नॉन डिफॉल्ट. हाँ, नहीं, पहले तो 2,000 इनकम में ऐड होगा और 2,500 लेस हो जाएगा इनकम में. फर्स्ट 2,000 विल बी एडेड. देखो, उसने दिया तो सिर्फ 500 अपनी जेब से है ना. जो एम्प्लॉय है उसने 500 रुपए खर्चा ना, 2,000 तो एम्प्लॉयर ने खर्च दिया. तो हम 2,500 की एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे और 2,000 उसकी इनकम में ऐड कर देंगे, तो नेट ही इज एक्चुअली गेटिंग ओनली 500 रुपीज एग्जेम्पशन. जो उसकी जेब से गया है उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा. हाँ, अभी तो हमने करा. ये देखो, ये देखो, ये है ऑप्शनल. ओके, तो ये देखो, ये जो आपका पिंक लाइन में आ रहा है, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयमेंट आ रहा है यहाँ पर. ओके, विच वॉज मिसिंग इन द इसमें नहीं था, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं थी, और जो आपका ऑप्शनल है उसको क्लेम कर सकता है बेनिफिट. तो सिंस ही हैज चूजन ऑप्शनल, सो ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर द डिडक्शन. इज दैट ओके? फाइन. अच्छा, अब आगे देखते हैं. फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड टू मिस्टर बालाजी बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्पस. कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप 45,000, कंप्यूटर 35,000. हाँ भी बताओ, लैपटॉप और ये दिया, इसका कोई बेनिफिट मिलेगा उसको एग्जाम्पशन इनकम, इसकी इनकम होगी या नहीं होगी? आई एम आस्किंग यू. आपका क्या नाम है? भूल गया मैं. संकल्प. संकल्प, दिस गाय वाज यूजिंग अ लैपटॉप एंड अ कंप्यूटर. The company, the guy's name is Balaji, so he was provided a computer and a laptop for personal, official and personal purposes. So cost of laptop of 45,000 and computer was 35,000. So is there any perquisite value for the laptop? Is there or not? Say yes or no. है? अरे भाई, अगर कंप्यूटर और लैपटॉप दिया जाता तो उसका कोई भी वो बेनिफिट नहीं दिया जाता. हाँ, आपको लैपटॉप दिया है. ओके, अभी तो हमने करा था सुबह. ये देखो, चलो लेट्स गो बैक एंड सी. किशोर, आप ही ने पढ़ा था सुबह सुबह. क्या पढ़ा था? यूज ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, वैल्यू बेनिफिट. नो. Even if it is given for personal purpose or if it is used for personal as well as official. आपको लैपटॉप दिया हुआ है, आप घर ले जाते हो तो पर्सनल भी यूज करोगे,
ऑफिशियल के लिए दिया हुआ है तो वो उसको ऑफिशियली माना जाता है, उसमें कोई भी आपको बेनिफिट, आपको जो भी कंपनी ने दिया आपको लैपटॉप, अब कंपनी ने आपको लैपटॉप दे दिया 50,000 रुपए का, वो आपकी इनकम में थोड़ा ना ऐड हो जाएगा। अब वैसे सोच के देखो, कंपनी सेज दैट दिस इज द लैपटॉप व्हिच आई हैव गिवन यू फॉर आई मीन मीटिंग आउट योर ऑफिशियल दिस थिंग। आपको घर ले जाओगे तो उसके अंदर आप यूट्यूब में जाके कुछ भी करोगे। तो लेकिन वो थोड़ा है कि आप जो है अब सुरक्षा जो है वो रेसिपी देखेगी क्या इसको बनाना है, कुछ ना कुछ भी देख सकते हो ना यूट्यूब में, वो पर्सनल पर्पस के हिसाब से है। सो द लैपटॉप इज not going to be added to your salary. Okay, whatever the employer has given the laptop worth 1 lakh or 50,000, whatever, it is not to be included in your salary, because even if you use it for personal purposes. Okay, fine. So there is no perquisite value on laptop and this thing. So maybe that you are going to, fine. So ये हम कहाँ पहुंच गए? अच्छा, हाँ, अब आते हैं 8th वाला, लीव ट्रेवल। अभी आते हैं वो भी देखेंगे। लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन टू द एम्प्लॉय, his wife and 3 children, one daughter age 7 and twin sons 3। अभी इसके लिए क्या कंपनी ने क्या दिया है? इकोनॉमी क्लास की टिकट दी है। ओके, हाउ मच? 30,000 फॉर हिमसेल्फ एंड स्पाउस एंड 40,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। तो इसको जो 75,000 मिला है, दिस कॉल्ड LTC। ओके, so will it be included as an income or will be excluded from his income? I'm asking this question, just let me know. ये exempt हो जाएगा under the non default scheme, but if it was a default scheme this would have been added to his income first of all. Okay, अगर ये डिफॉल्ट में जाता होता तो उसके 75,000 इसकी इनकम में लग जाता, टैक्स देना पड़ता उसको, क्योंकि नाउ ही इज चूजन द नॉन डिफॉल्ट स्कीम, सो दिस विल नॉट बी एडेड टू हिज इनकम। इज दैट ओके? हाँ, दैट्स आई एम कमिंग, दैट्स अ गुड थिंग। सो अप टू दो बच्चों के साथ, अगर आपके दो, आप हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चों में जो खर्चा होगा वो एग्जेम्प्ट होता है। बट इफ देयर इज अ ट्विन चाइल्ड, if the second child is born as a twin child, then that will be also considered for your tax benefit. ओके, तो नीचे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर इसका नोट भी आएगा अभी। तो क्योंकि इसमें दिखा हुआ है कि ट्विन सन्स, सो फर्स्ट चाइल्ड वाज डॉटर 7, नेक्स्ट टाइम उसके दो बच्चे पैदा हुए, तो हालांकि एग्जेम्पशन सिर्फ दो बच्चों की मिलती है, बट इस केस में तीनों बच्चों की मिलेगी क्योंकि इट वाज अ ट्विन साइन। ओके, फाइन। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट हम लेंगे उसकी सैलरी। देखो, पहले सैलरी कितनी है? 50,000 थी, और फिर उसकी सैलरी 60,000 होगी पहले 7 महीने और 5 महीने। तो हम यहाँ जाएंगे अगर, तो यहाँ 6,50,000 आ गया, विच इज बेसिकली 50,000, बिकॉज इफ यू सी द क्वेश्चन, his salary up to 31st of October was 50,000, and from 1st November to 1st November it was 60,000. So नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीने में उसको 60,000 मिली और बाकी 7 महीने उसको 50,000 मिली। तो यहां पर हमारा ये आ गया 6.5 लाख। इज दैट ओके? देन DNS अलाउंस 40% ऑफ द पे। सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ही इज गेटिंग DNS अलाउंस 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। ओके, सो हमने इसका 40% ले लिया यहाँ पर, विच इज बेसिकली द फॉर्मूलाज वी कैन जस्ट चेक। तो इसका 40% आ गया, जस्ट हैव अ टिक। इज दैट ओके? ध्यान दो सुरक्षा। ओके, सो ये 2,60,000 कहां से आया है सुरक्षा? 2,60,000 क्या है? हाउ मच इट इज? 40% ऑफ 6,50,000, बिकॉज दिस इज अ DA। ओके, देन बोनस, ही गॉट हाउ मच बोनस? Contribution of the employer, sorry, bonus equal to 1 month salary paid in October 23, जो अक्टूबर 23 में पे हुई थी, ऑन बेसिक प्लस DNS अलाउंस जो था उसका आपको मिलेगा। तो हम यहां जाते हैं वापस आंसर में। सो 50,000 वॉज गिवन इन अक्टूबर, नवंबर से उसकी सैलरी 60,000 हो गई थी, अक्टूबर में तो 50,000 थी। ओके, तो ही इज गोइंग टू गेट 50 प्लस 40% ऑफ 50,000, सो ही इज गोइंग टू गेट 70,000 एज बोनस, which will be included in his income. Is that okay? Fine. Then we come to employer's contribution to recognized provident fund. So how much? In excess of 12% will be added to his salary. How much he is contributing? 16%. So इसका 4% ले लिया हमने। Is that okay?
फाइन. सो वाई वी हैव इंक्लूडेड 4%. दिस 26,000 कैसे निकाला हमने? इस 6,50,000 का 4%. इज दैट ओके? वाई वी हैव डन, काजल? हैव यू अंडरस्टूड? दिया? नहीं समझ में आया तो पूछो ना. अब ये थोड़ा मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो को क्या नहीं आया समझ में. देखो, अप टू 12% ऑफ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट. अंडर व्हाट? अंडर सेक्शन 10. जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अप टू 10% ऑफ द सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर अपनी जेब से डाल रहा है, आपको दे रहा है, तो नॉर्मली तो टैक्सेबल होना चाहिए बिकॉज ही इज गिविंग यू मनी. बट द गवर्नमेंट सेज, और लॉ अथॉरिटी सेज, अप टू 12% इट्स एग्जेम्प्ट. सो देयर इज अ सेक्शन 10 जिसमें एग्जेम्पशन दी हुई है. उसमें ये बोला गया है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% इज एग्जेम्प्ट. बट एम्प्लॉयर कैन नॉट गिव मोर देन 12%. If it gives more than 12%, remaining will be taxable, and the employee has to pay tax in that year itself. So how much he has paid? 16%. तो इसका मतलब 16 minus 12, 4%. तो 4% of how much? 6,50,000. Is that okay? Have you got it now? ये समझाया तो था, भूल कैसे जाते दिया? याद रखो. Okay. Now, professional tax paid by the employer. So why we have added professional tax? प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपए हम उसकी सैलरी में क्यों गिन रहे हैं? बिकॉज इट, हाँ, एम्प्लॉयर ने पे करा. इट वाज अ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन टू पे एनी टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन. ही इज सपोज टू पे इट. इफ द एम्प्लॉयर सेज कि मैं पे कर रहा हूं, तो फिर तुम पे कर रहे हो तो ठीक है, उस पर टैक्स पे करो. अब पे भी एम्प्लॉयर करे और टैक्स भी आप पे ना करें तो ठीक नहीं है ना. तो द गवर्नमेंट सेज दैट यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट. सो दैट्स व्हाई वी एडेड दिस 2,000 इन हिज टैक्सेबल. इज दैट ओके? देन परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार. अब हम देखते हैं मोटर कार क्या है. मोटर कार वाला पढ़ो, सुरक्षा. So he is getting only a motor car. Motor car is owned by the employer. So कंपनी की गाड़ी है, उसने दे दी बालाजी को. कब दी? 1st of November 2023. So for how much period for the last year? नवंबर से लेके मार्च तक 5 months है. हाँ, 5 months, 5 महीने के लिए इसको गाड़ी मिली हुई, तो 5 महीने का परक्विजिट ऐड होगा. ओके. सो व्हाट कंपनी हैज स्पेंड? 45,000 रुपीज एक्सपेंसेस. Okay, but and there is self driven, that means the driver will be Balaji himself. He's not going to get the driver. So let's go and see, check the, the rule. यहां आते. सो ये पहले वाला देखो. पहला वाले में क्या है? कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. यस, द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. एक्सपेंसेस मेट बाय द एम्प्लॉयर. यस. ऑफिशियल पर्पस के लिए, पार्टली फॉर पर्सनल यूज के लिए, उसमें लिखा दोनों यूज के लिए होगा, तो इसका मतलब पार्टली फॉर पर्सनल यूज देखना पड़ेगा. सो इफ द कार इज अबव 1.66, हाउ मच इज गोइंग टू बी एडेड टू हिज इनकम? 2,400 रुपीज पर मंथ फॉर 5 months. अगर ड्राइवर मिला है तो 900 रुपए भी जुड़ जाएगा. तो ड्राइवर मिला नहीं है, बालाजी खुद ही ड्राइव कर रहा है, तो 2400 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी एडेड टू हिज इनकम. इज दैट ओके? सो लेट्स गो बैक हियर. So 2,400 into 5 months, 12,000 rupees. Okay, is that okay? So if the car is owned by the employer, but the employee is using it, company is maintaining all the expenses, and the car is used by the employee both for personal as well as for, personal as well as official purposes, then there is a perquisite value needs to be added to the salary of the person, which is, if it is more than 1.6 cc, then 2,400 rupees has to be added to his salary. And if the driver is given, then another 900. So in this case, Balaji himself driving, no driver, but 2,400 rupees will be added for the per month of the usage of the car. He has used it for 5 months, so 2,400 multiplied by 5. Is that okay? Clear? Any questions? Are you not? समझ में आ गया किशोर? दोबारा बताएं. देखो, हम क्या करते हैं, अब पहले सुनते नहीं हो, फिर मुझे कहते दोबारा बताएं. ये देखो, ये पढ़ो आप. द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वाला अप्लाई हो रहा है हमारे केस में.
हु ओन्स द कार? एम्प्लॉयर। कंपनी किसकी है? गाड़ी जो है, सॉरी कंपनी तो किसी की, गाड़ी कंपनी की है, ओके। एंड टू whom he is given? To the employee. एंड एक्सपेंसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर। उसने 45,000 रुपए खर्चा करा था एम्प्लॉयर ने, और गाड़ी उनकी है, और दे दी बालाजी को। किसके लिए? बोथ फॉर पर्सनल एज वेल एज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। सो सिंस इट हैज बीन गिवन फॉर पर्सनल यूज आल्सो, फाइन। तो कंपनी जो जो खर्चा कर रहा है वो उसकी इनकम में ऐड नहीं होगा, जो उसके ऊपर जो, क्योंकि वो ऑफिशियल के लिए भी हो रहा है, तो परक्विजिट वैल्यू ऐड हो जाएगी सिर्फ। Okay, that 45,000 rupees which the company has spent will not be added to the income of the employee, because that 45,000 include both for official as well as for personal purposes. So personal purpose के लिए उसको एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर गाड़ी छोटी है, सेंट्रो है, तो या वैगन आ रहा है तो 1800 रुपीज पर मंथ। अगर गाड़ी बड़ी है, ओके, अब बड़ी गाड़ी का कोई एग्जांपल लो। हाँ, टोयोटा इनोवा या ऐसी गाड़ी है, वेरी गुड। हाँ, तो विच इज अबव 2000 सीसी, सो 2400 रुपीज उसको, अगर सब उसको टोयोटा मिली थी तो 2400 रुपए पर मंथ उसकी गाड़ी में, उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और उसको क्या है कि शॉफर दिया ही नहीं, बालाजी को बोला खुद गाड़ी चलाओ भैया, तो मेरे को ड्राइवर नहीं मिलेगा, तो उसको क्या है 2400 रुपए ऐड हो जाएगा। इज दैट ओके? अगर उसको ड्राइवर दे देते, ओके, तो फिर 900 रुपए और ऐड हो जाता। इज दैट ओके? तो ये आ गया, फाइन। अब इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई, टोटल सबका टोटल कर लिया तो 10,20,000 की टोटल सैलरी बन गई। अच्छा, 50,000 रुपीज उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और ये जो प्रोफेशनल टैक्स पे कराया उसने, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये चूज नॉन ऑप्शनल स्कीम। अगर ऑप्शनल ली होती तो उसको ये 2,500 भी उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तो अब उसका, इसका मतलब टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 9,67,000। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और करते हैं, पढ़िए किशोर, कोई दिक्कत है? आप लैपटॉप में देख सकते हैं। लैपटॉप आप भी नहीं लाया, कोई भी नहीं लाया? हु हैज ब्रॉट द लैपटॉप? कौन? प्रतिष्ठा लाई? यहाँ तो इसको दे दो, सुरक्षा को दे दो, या प्रतिष्ठा पढ़ सकती है या सुरक्षा पढ़ सकती है, जो भी पढ़ ले। किशोर को दो। जस्ट रीड इट। द फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा पढ़ो। व्हाट्स योर, संचित क्या नाम है? संचित। ओके, एक सेकंड, कहाँ है, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? तो फोर्थ क्वेश्चन तो यहाँ से होना, एक्सीलेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग परक्विजिट एम्प्लॉय। आपकी उसमें अलग है कुछ क्या? फोर्थ क्वेश्चन ये नहीं हो रहा, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। ट्वेल्व थाउजेंड या 1,200? 12,000 सीसी की गाड़ी बनी है अभी तक कहीं? अच्छा, आपने 12,000 सीसी बोला था ना, तो मैंने कहा अभी तो बनी नहीं है। ओके, तो चलो अब यहाँ आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यहाँ से देखते हैं। So computation of perquisite, value perquisite taxable in the hands of Mr. Y. Okay. So value of accommodation at consensual rate. Fine. So he has been given a house. Fine. So which is 15% of salary. Salary for this purpose is 10 lakhs. So it comes to 1,80,000. Sorry, 1,50,000. Value of
accommodation consisted amount of lease rental, which is 1,80,000. So company is paying a lease rental of 1,80,000. So let's go and check that. Accommodation taken on lease by X Limited for 15,000 per month. So that means company has taken a house for the employee for which they are paying a lease rent of 15,000 rupees per month. कंपनी ने आपको घर लेके दिया 15,000 रुपए के लीज के ऊपर. So that means how much the company is paying per annum? 1,80,000. Okay. So that is there in the first box, amount of lease rental. Now the law says 15% of salary, okay, or lease rental, whichever is the lowest, will be taxable, which we have read in our initial when we started. So 15% of salary is how much? 1,50,000. Because the salary for the purpose of calculating the 15% is 10 lakh, which is given the question. So 1.5 लाख. तो अब 1,80,000 और 1.5, तो ये आपका 1.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स लगेगा. Okay, is that okay? Because 15% salary is 1,50,000, whereas the lease rental is 1,80,000. The least of this will be treated as perquisite value. Now, rent paid by the employer is 5,000 rupees per month. It is given in the question. So that means 60,000 he has been paying. So 90,000 will become, included in the salary. The company has given a house and company is paying 1,80,000 lease rental. But 15% salary उसकी सिर्फ 1.5 लाख आती है. So least of the two will be considered as a perquisite value. We have read that in the morning. So 1,50,000 becomes the perquisite value. उसमें से भी 5,000 वो दे रहा अपनी जेब से. तो इसका मतलब उसकी जो है 90,000 रुपए वैल्यू हो जाएगी, perquisite value. And then the company has taken up furniture on hire, and the hire charges are add hire charges, which is 36,000. 3,000 रुपीज का फर्नीचर किराए पे लेके दे दिया एम्प्लॉयर को, तो 36,000 ये भी जुड़ गया. तो टोटल वैल्यू ऑफ द हाउस प्लस फर्नीचर इज 1,26,000. इज दैट ओके? फाइन. देन perquisite value of a Santro car, okay, which is below 1,600 cc, 1.6 से कम है, तो 1,800 प्लस शॉफर भी मिला हुआ उसको, ड्राइवर भी मिला है, तो 900 हो गया. तो 1,800 प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाय 12, because the car is being used both for official as well as for personal purposes. Okay, so and all the expenses are met by the employer. So in this case, a perquisite value of 1,800 plus 900 will be added to his salary, which is 32,400. Okay, then value of the gift voucher, because the gift is exceeding 5,000. हमने देखा था शुरू में 5,000 तक गिफ्ट माफ होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देता. 10,000 का गिफ्ट हो जाएगा तो उसको 100% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. बट देयर इज अ टू व्यू that you can even choose this, take it as a 5,000 here also, okay, or 10,000. And if you say I'm taking 5,000, then you say that I'm taking a liberal view of the provision, okay. But the strict view of the provision says that 10,000 voucher will be 100% taxable, okay. So value of perquisite taxable will be this thing. So नीचे लिखा हुआ है, an alternative view possible is that only sum of 5,000 is taxable. In such case, the value of perquisite will be only 5,000. Is that okay? Up to 5,000 rupees gift voucher is exempt. If the employer gives you a gift voucher of 5,000 rupees per annum, it will not be included in your salary. But if the employer gives you a voucher of 10,000 or 6,000, 1,000 becomes taxable in your hands. You can take either this view or a more stricter view that you offer 6,000 for the tax purpose. अगर आप 6,000 इंक्लूड कर दो उसकी इनकम में, वही 5,000 तक माफ है. If 6,000 है, I'm going to the tax commissioner would say 6,000, but you can contest for 1,000 because there is no explanation or no further thing which is given. Generally, people always take the liberal view, and commissioners of income tax also agree to that. Okay, इसमें कोई बड़ी खास चीज नहीं है, unless the gift was for 5 lakh rupees. अच्छा 5 लाख भी होगा तो 5,000 तक एग्जेम्पशन क्लेम करोगे, बाकी 4 लाख 95,000 तो टैक्स ही लगेगा आपको. तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. सो आई मीन इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो इग्नोर दैट. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट. ओके, सो अनदर क्वेश्चन. आज लगता है पढ़ने के मूड में से कोई नहीं आया है यहाँ पर. क्या प्रॉब्लम क्या है? ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन. आप पढ़ना चाहते हो? पढ़ो. एक्स लिमिटेड. अच्छा सुनो एक सेकंड, देखो ऐसा है
Most of you will be working in a companies and you will be paid salaries. तो ये तो पता होना चाहिए ना आपको ना. तो pay attention. Fine. This is for your benefit. When you join the company, you will be asking from other people, ये इसमें कौन सा tax लगता है. So this is a good knowledge which you are getting. So please be focused. I mean, okay. Fine. पढ़िए. Okay. So now, this question says that he is opting out of the optional scheme. Okay. Under 115, he doesn't want, he want to claim all the tax benefits. So he is going to pay higher tax, but going to claim more deductions. Let me that. But the government mentions that he should remain on the default scheme where he pays lower tax, but enjoys less deduction. Okay. Fine. So now in this important thing was a personal loan of 5 lakh was given. Okay. So what's the law regarding personal loan? If the personal loan is given to the employee, so what's the rule says? SBI का क्या रूल? SBI का टैक्स क्या रेट है? एंड व्हाट इज द रेट द एम्प्लॉयर हैज बीन चार्ज? 6.75%. तो डिफरेंस कितना आ गया? 6%. सो 6% जो है उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा. Because the SBI is charging 12.75%, whereas the employer is charging 6.7%. So he is giving a concession, this thing. And the loan is beyond 20,000. So अगर लोन 20,000 से ऊपर का है, तो then the difference will be added as a perquisite value to his salary. Is that okay? Fine. Okay. Anything else? चलो इसको देखते हैं. अब हम यहाँ जाएंगे और basic salary is how much? 25,000 into 2, 3 lakh rupees. Okay. The question में दिया हुआ है उसकी basic salary यहाँ दी हुई है. कहाँ दी है basic salary? हाँ ये monthly salary है 25,000. Okay. So 25,000 हो गया. Commission is getting 1,000 rupees and entertainment also allowance he is getting 1,000 rupees, which is given in the question that he's been paid entertainment allowance and commission of 1,000 each per month. So we have added this to his salary. Okay. Is that okay? Then rent-free accommodation. Now accommodation has been given to him. Okay. So accommodation के लिए हमने क्या करा? So what is there? A company-owned accommodation is provided to him in Delhi. A company-owned accommodation. So that means the employer is owning that accommodation in Delhi. So 15% of his salary will be treated as a perquisite value. Remember that in the morning we did. Furniture costing 2,40,000 was provided to him on 1st of August 2023. So somewhere in the mid, furniture was also given to him. Okay. So let's see and check how much we have done. So rent-free accommodation will be this. So which is 48,000 for. So we can just calculate that. So the salary was 3,24,000. This is the salary. 3 lakhs commission and entertainment. ये सब में लाके सैलरी होगी इसकी. इसका 15% जो है 48,600 आ गया. Okay. So salary was 15% of this thing. 15% is 3 lakh, 12,000 entertainment as well as this thing. So इस total salary का 15% यहाँ आ गया हमारे पास सीधा. Okay. And then furniture was given to him. How much? 2,40,000. 10%. The law says that जितना furniture उसको दिया गया है उसका 10% उसकी perquisite value में add हो जाएगा. Okay.
So which is for 8 months, because the furniture was given on the somewhere in the middle. Okay, so let's see when the furniture was given. Furniture was given on 1st of August. Okay, so August, September, October, November, December, January, February, March, 8 months. So 8 months का 2,40,000 के ऊपर जो उसको दिया है उसका 10% जो है आ जाएगा, तो वो 16,000 बन जाता है. ओके, फाइन. दिस ऑल्सो वी कैन सी, दिस इज कुछ पीछे से आ रहा है. ठीक है, फाइन. सो 2,40,000 का 10% कितना होता है? 24,000. ये तो पूरे साल का है. डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 8, 16,000. ओके, सो ये आ गया हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द एकोमोडेशन. देन इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन 22,500, which is a 6% on that amount of this thing. So this also we can calculate. तो ये भी पीछे से आ रहा है, ये देखते हैं यहाँ पर. Loan was 5 lakh. 12.75% is SBI rate, and actually 6.75. Difference is 6%. 6% on 5 lakh is 30,000. Okay, and for 12 months monthly, for 9 months it is coming to 22,500, because the loan was given not for the whole year, but the loan was given somewhere in the middle. Okay, a personal loan of 5 lakh on 1st of July was given. So April, May, June 3 महीने निकाल के 9 महीने की ऐड हो जाएगा 6%, तो वो हमने ऐड कर दिया. इज दैट ओके? So अच्छा, यूज ऑफ मोटरसाइकिल. नाउ मोटरसाइकिल वाज गिवन टू हिम हिज सन. इस क्वेश्चन में दिया है कि 60,000 की मोटरसाइकिल, हिज सन इज अलाउड टू यूज अ मोटरसाइकिल. ओके, belonging to the company. The company had purchased this motorcycle on 1st of May 2020 for how much? 60,000. Okay, and the motorcycle was finally sold to him on 1st of August 2023 for 30,000. Fine. So that means कि मोटरसाइकिल जो आपको दी गई है उसकी वैल्यू और जो ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल हुई है उसकी वैल्यू, दोनों की दोनों पे टैक्स लगेगा उसको. पहले तो उसको मोटरसाइकिल दी उसके बेटे के लिए, उसने यूज करी. ओके, फिर बाद में उसको मोटरसाइकिल बेच भी दी. तो इसका मतलब जो एसेट है वो उसको अगर कम पैसे में बेचा है तो वो परक्विजिट वैल्यू होगी और उसको यूज की होगी. तो उसका 10% जो है यूज ऑफ मोटरसाइकिल 60,000 की है, 10% 4 महीने के लिए. ठीक है, तो ये हो गया 2,000 रुपए. ओके, फाइन. बिकॉज दिस मोटरसाइकिल वॉज गिवन टू हिम व्हेन द मोटरसाइकिल first of the motorcycle was finally sold to him. His son was, the company had purchased the motorcycle इतना. हाँ, तो अब ये तो मोटरसाइकिल हो गया. ओके, हाँ अच्छा सुनो ये, हाँ वाई इट इज फॉर 4 months, बिकॉज उसको बेच भी दी ना उसने. सिर्फ 4 महीने तो उसको यूज करी, उसका तो उसको बेच ही दी. अच्छा, लेट जस्ट लिसन नाउ. मोटरसाइकिल वाज बॉट फॉर 60,000. सो पहले साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%. ओके, फिर डेप्रिसिएशन होते होते टोटल वैल्यू हो गई उसकी 42,000 रुपए की. 3 साल तक उसको डेप्रिसिएशन मिलता रहा. ओके, तो रेट इज 10%, डेप्रिसिएशन 18,000. रिटन डाउन वैल्यू इज हाँ इंटू 3 कर दिया हमने इसको. ओके, ये मोटरसाइकिल है. ओके, तो इसमें क्या होता है, यहां आते हैं. नो, यहां देखो, नहीं वो तो मोटर कार के पड़ता है, ये मोटरसाइकिल है. ये डिफरेंस है. मोटर, ये जो है देखो, अगर कंप्यूटर है, मोटर कार है, एनी अदर, ये एनी अदर एसेट में आता है. तो इसमें कितना 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी 10% हर साल 10% स्ट्रेट लाइन. ओके, सो हम ये रूल यहां लगाएंगे. देखो मोटरसाइकिल कितने की थी? 60,000 की, और डेप्रिसिएशन 10% है, तो 6,000 की डेप्रिसिएशन होगी पर साल, और 3 साल के लिए 18,000. तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 42,000. और गाड़ी कितने में ट्रांसफर करी? 30,000 में. तो इसका मतलब 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा उसके हाथ में, बालाजी के, बालाजी जो भी बंदा है. हाँ, अब 4 महीने का उसका यूज ऑफ मोटरसाइकिल है. ओके,
तो उसका जो 10% होता है वो 6,000 होता है, तो 4 महीने का 2,000 होगा। देखो इसका मतलब 500 रुपये पर महीने का है, 4 महीने का वो हो जाएगा। तो 4 महीने तक तो उसने यूज करी, 4 महीने के बाद उसको बेच भी दी, तो 4 महीने का तो यूज का परसेंटेज लगेगा। उसके बाद जो उसको मिली है प्राइस डिफरेंस था बिटवीन द एक्चुअल एंड द रिटर्न ऑन वैल्यू में जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो होगा। सो दैट मीन्स इफ यू जस्ट गो बैक हेयर, आई जस्ट शो यू यहाँ पर। तो देखो अब यूज ऑफ मोटरसाइकिल पहले तो यूज करी 4 महीने, ओके फाइन, और उसको फिर जो है उसका तो हो गया, जो जो वैल्यू है उसका 10%, है ना। 60,000 की मोटरसाइकिल थी, 10% 6,000 हो गया, और 4 महीने के लिए तो उसका मतलब 2,000 होगा। और फिर वो मोटरसाइकिल उसको बेच भी दी, तो उसका 12,000 होगा, डेप्रिशिएट वैल्यू थी 42,000, और उसको दे दी 30,000 में, तो 12,000 का तो वो भी ऐड हो जाएगा। इज दैट ओके? फाइन। तो इसकी ग्रॉस सैलरी, इसके बाद इसको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा, तो इसकी सैलरी आ गई है। इज दैट ओके? फाइन। एक क्वेश्चन लास्ट एंड देन वी एंड अप। फाइन। अभी तो टाइम है 12:30 तक होती है अभी क्लास, मैं जल्दी छोड़ देता हूँ आप लोगों को, एक और कर लेते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी जो आ रहे हैं वो सब आएंगे जो लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और पेंशन वाले, है ना। सो दिस विल कंप्लीट द होल थिंग। सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू रीड? Mr. Sagar, who retired on 1st October. receiving 5,000 per month as pension on 1st Feb 22, 60% of his pension is received 2 lakh as commuted pension. He is required to compute taxable pension. Assuming he is a government employee, he is a private sector employee and receives gratuity of rupees 5 lakh at the time of retirement. He is a private sector employee and did not receive gratuity at the time. Okay. Mr. Sagar, who retired on 1st October 2023, is receiving 5,000 as pension. So अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। तो हाउ मच इज गेटिंग? Mr. Sagar, who retired on 1st October 2023, received 5,000 as pension. On 1st of February 2024, he commuted 60% of his pension and received 3 lakh rupees. तो उसको 3 लाख रुपए मिला कम्यूटेड पेंशन। तो उसको क्या मिल रहा है? 3 लाख तो कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, वन लमसम अमाउंट, एंड 500 रुपीज एज 5,000 रुपीज एज पेंशन। फाइन। सो पहले हम देखते हैं इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो लेट्स गो एंड सी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो अनकम्यूटेड पेंशन अक्टूबर टू मार्च 24,000। कैसे? 5,000 into 4 months and 40% of 5,000 for 2 months। ये क्यों लिया हमने? जो उसको पेंशन मिली है वो 24,000 मिली है। देखो क्या था, लेट्स सी द क्वेश्चन, दैट ही इज रिसीविंग 5,000 पर मंथ, ओके, व्हेन ही वाज रिटायर्ड ऑन 1st of October एज पेंशन 5,000। ऑन 1st of February, दैट मीन्स 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक तो उसको 5,000 पेंशन। उसके बाद उसने 60% कम्यूट कर ली, ओके, और उसको 3 लाख रुपए मिल गया। तो इसका मतलब कि 60% ऑफ 5,000 वॉज कम्यूटेड, बाकी उसको 2,000 मिल रहा है। इसका मतलब 40% ऑफ 5,000 हाउ मच? 2,000। सो ही इज गेटिंग 2,000 प्लस दिस अमाउंट। सो ही इज गेटिंग पहले तो 4 महीने पूरा उसको 5,000 मिला था, 20,000, फिर 5,000 का 40% उसने कम्यूट कर लिया, ओके, और उसको 4,000 रुपए पेंशन होगी इसकी, मतलब 2,000 पेंशन होगी, तो उसको टोटल मिला के 24,000 पेंशन मिली। Okay, is that okay? 24,000 is got pension. Now he commuted this 3 lakh rupees. Under section 10, government employee is totally given a benefit on whatever portion he has commuted. He is not, don't have to pay any tax. जो भी आप कम्यूट करते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं आता अंडर सेक्शन 10। इज दैट ओके? सो ओनली द पेंशन विच इज गोइंग टू गेट is a recurring income. He needs to pay tax on that if it is comes under taxable bracket. Is that okay? Fine. इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब चलते हैं दैट ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड रिसीव्ड अ ग्रेच्युटी ऑफ 5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो देयर आर टू बाइफर्केशन है। अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है और दूसरा उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। अगर ग्रेच्युटी मिलती है देन द लॉ इज डिफरेंट, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो लॉ इज डिफरेंट। उसको तो पेंशन मिल रही है बट उसको ग्रेच्युटी के साथ लिंक्ड है। अगर कंपनी
उसको ग्रेचुटी भी देती है। तो एज्यूमिंग दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड ही इज एलिजिबल फॉर रिसीविंग अ ग्रेचुटी एंड रिसीव्ड अ ग्रेचुटी ऑफ 5 lakhs, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड रिसीव्ड अ ग्रेचुटी ऑफ 5 lakhs। ओके, सो फर्स्ट दिस थिंग। सो तो हम क्या करेंगे, तो वही सैलरी तो वही आ जाएगी 24,000, पेंशन तो वही है, फाइन। अब हम यहां आते हैं कि उसको ग्रेचुटी कितनी मिल रही है, सॉरी पेंशन कितनी मिल रही, कम्यूटेड 3 लाख। तो इसको बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 1,66,000 का। कैसे, अब इसको नेक्स्ट टाइम में ज्यादा अच्छी तरह करेंगे। तो उसको अभी 3 लाख मिली थी, 3 लाख मिली थी, लमसम मिली थी, जो कि उसने 40% कराई थी कम्यूटेड। तो अगर हम फुल कराता तो कितनी मिलती, 5 लाख मिलती उसको। अगर वो कहता मैं 100% कम्यूट कर लेता हूं तो उसको 5 लाख मिलनी चाहिए थी, तो उसको मिली सिर्फ 3 लाख। तो अब इस 5 लाख का 1/3 विल बी एग्जेम्प्ट। जो उसको पूरी जो कम्यूटेड मिली थी, उस अगर वो पूरा कम्यूट कराता, उसका 1/3 की एग्जामेशन मिल जाती। हाँ, 3 लाख की है। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको कितनी एलिजिबल था, कितना मैक्सिमम नॉन कम्यूटेड कितनी हो सकती थी, 5 लाख, क्योंकि 3 लाख वॉज इक्वल टू 60%, सो दैट मीन्स 5 लाख विल बी इक्वल टू 100%। तो 5 लाख का 1/3 की एग्जामेशन मिलेगी उसको। तो ही विल गेट एन एग्जामेशन ऑफ 1,33,000, रेस्ट विल बिकम टैक्सेबल। ओके, इसको नेक्स्ट टाइम थोड़ा और दोबारा से देखेंगे। अब आते हैं कि दैट ही इज अ प्राइवेट सेक्टर, लास्ट क्वेश्चन एंड विल अगेन रिपीट इट नेक्स्ट टाइम। ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव अ ग्रेचुटी। अगर ऐसा केस होता कि ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, तो इसमें गवर्नमेंट कहती है फिर आपको ज्यादा छूट मिलेगी। तो इसमें तो उसको 1/3 मिल रही थी। ओके, यहां पर कितनी मिल रही थी, 1/3 मिल रही थी, 1/3 आई, 1/3 जो मिल रही थी। अगर वो यहां है तो यहां उसको आधी मिलेगी, हाफ। तो वही हमने निकाली, 5 लाख, 3 लाख का 5 ने निकाला 100% में, और उसको 2.5 लाख उसको मिल जाएगी, क्या कहते हैं, 2.5 लाख की एग्जामेशन में 3 - 2.5 लाख, तो नहीं 50,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये टू पे। तो अगर अब हम दूसरा देखें कि अगर सपोज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो सिर्फ पेंशन पे उसको टैक्स लगेगा। ओके, only on pension he is going to pay the tax, on gratuity, on sorry, on the commuted portion of the pension he is not to pay any tax if it's a government. But if he is a private employee, it is bifurcated into two: a private employee getting a gratuity, a private employee not getting a gratuity. अगर उसको ग्रेचुटी मिलती है, तो अगर सपोज उसको 5 लाख ग्रेचुटी, इसमें क्वेश्चन में दिया है 5 लाख ग्रेचुटी है ना, तो यहां जाते हैं हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो ही इज गेटिंग, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड रिसीव अ ग्रेचुटी, देन ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव अ ग्रेचुटी। तो दोनों केसेस में हमने यहां पर देखा कि यहां पर उसको ग्रेचुटी मिली थी। ओके, यहां तक तो सेम है, 24,000। अब आता है कि पेंशन रिसीव हाउ मच, 3 लाख कम्यूटेड पेंशन। अगर वो 100% कराता तो उसको 5 लाख मिलती। तो 5 लाख का 1/3 इज एग्जेम्प्ट अगर उसको ग्रेचुटी मिल रही है। तो इसका मतलब 1,66,000 जो है इसका आपका जो है 5 लाख का, ये जो है यहां देखते हैं, इसका जो है 60%, इसका 1/3 ऑफ 5 लाख विल बी 1,66,000। तो यहां पर इसको, ये फिगर हम कर लेंगे यहां पर, ये इसको देखते हैं। So this means 3 lakh minus 1,66,000. So that will become taxable. Okay. So his total tax will be how much? Total taxable pension will be how much? 1,47,000. Is that okay? Fine. और अगर हम चलते हैं कि उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही थी, अगर ग्रेचुटी नहीं मिलती है, ओके, तो इस केस में फिर गवर्नमेंट कहती है कि फिर उसको जो है थोड़ा ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। तो यहां पर उसको पहले मिल रही है 160, यहाँ 2.5 लाख की छूट मिल जाती है। वो कैसे कर रही है हमने, हमने ये जो फिगर थी यहां पर, तो ही इज गेटिंग 50%। अगर 100% तो 5 लाख होती, उसका 50% उसकी उसको छूट मिल जाती। तो यहां पर हमने, तो इसका मतलब कि उसको जो टैक्सेबल होगा वो, विच विल बी बेसिकली 3 लाख माइनस 2,50,000, 50,000 विल बी टैक्सेबल। सो इस टैक्सेबल सैलरी विल बी हाउ मच, 74,000। इज दैट ओके? फाइन। तो ये जो था फाइनल था कि अगर आपको पेंशन मिलती है, तो जो पेंशन मिलती है, तो जो आपका सुपरएनुएशन का बैलेंस है, जिसका बैलेंस के हिसाब से आप पेंशन कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप जो है आपका चॉइस है कि आप कोई पेंशन ले लो या आप कम्यूट करा लो। तो आप कम्यूट कराओगे तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा, और आप कम्यूट नहीं कराओगे तो आपको पेंशन मिलेगी, और पेंशन में भी टैक्स